Hello. Yes. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone. भाई ये बंद करो, म्यूट करो। कौन ये लाउड स्पीकर में सॉन्ग सुन रहा है भाई? चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। ओके, so draw first top view. In this case, mark all these corners A, B, C, D and apex O. Draw projection upward, and the axis is 50 mm. Hello, 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 hello. अरे कबीर सिंह आ गए बीच में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन म्यूट करो ना माइक को। ओके, draw the front view of this just opposite. Mark these all points A dash B dash C dash. हेलो हेलो, भाई माइक को ऑफ करो, ठीक है? नहीं तो ये सब रिकॉर्ड हो जाता है ना, फिर अगर रिकॉर्डिंग भी डालूंगा तो डिस्टरबेंस आएंगे फिर। ओके, सो अपने इतना हो गया था। एंड डू द फर्स्ट स्लांट एज वर्टिकल। ओके, so here we are doing the vertical A dash D dash A dash O dash. Okay, हेलो, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? वेट वेट वेट। यस सर भाई। ओके, सो इतना तो हो ही गया था अपना क्वेश्चन। The question, apex on HP and one slant edge is vertical. So 4 slant edges होते हैं इस आपके स्क्वायर पिरामिड में, तो one slant edge is vertical. We need to do vertical. Hello, hello. Do it vertical, that slant edge. देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर एग्जाम होते हैं आपके, जब भी होंगे तो A dash O dash do it vertical, and with this slant edge one triangular face. Hello, hello. One triangular faces, 4 triangular faces होते हैं पिरामिड में, तो one triangular faces containing this vertical slant edge is perpendicular to VP. Is perpendicular to VP. That means triangle is perpendicular to VP containing one slant edge perpendicular. That slant edge is vertical. Okay, so do it vertical. Before that we need to draw the top view of a square pyramid. Mark all these cutting points. A dash O dash are on same point. Okay, and hidden edges, hidden slant edges. Okay, and do the vertical, and triangle containing that slant edge is vertical. Here it is written, it is perpendicular to vertical plane. Perpendicular to vertical plane, something is perpendicular to vertical plane when you see it from top, one line, one perpendicular to xy. Okay, you will see here, this is perpendicular. D dash A dash O dash, this is perpendicular. Draw all the projection upward and horizontal projection from the front view, and mark all these cutting points. Okay,
So here A is coming over here, A dash, B will come over here, B, C is coming over here, and O will come on the XY line. Join all these points. So this is the answer of this question. Hello. लास्ट वाला शेप है, हेलो, वो स्क्वायर नहीं है क्या सर? कौन सा नीचे? दिस वन? हाँ सर, ये वाला सर. एक्चुअली में क्या है कि इसका ये ट्रायंगुलर, वन ट्रायंगुलर एपेक्स इज कमिंग, इज ऑन वर्टिकल. Okay, that is vertical, perpendicular to VP. Okay, this is triangular face. A, O dash, D dash, A dash. Hello. In the question, it is clearly written. Hello. भाई माइक को म्यूट कर लो भाई. ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एज इज वर्टिकल. चलो, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी. हेलो सर. सर ये जो क्या है कि आपको खुद ड्रॉ करना हो. जी हाँ, बोलो. सबसे पहले सर जो टॉप व्यू बनाए हैं सर, उसमें सिंपल स्क्वायर नहीं बना सकते थे? टेढ़ा जो उसको मतलब नो जैसे नो नो एसी नो, पैरेलल सिंपल बनाए. इसलिए नहीं बन सकते. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए apex is on HP and such that its one slant edge is vertical. One slant edge is vertical. अगर आप इनको पैरेलल कर देंगे, ओके, तो आप वर्टिकल कैसे करेंगे? आपको इस तरफ टॉप व्यू बनाना होगा कि आपको मतलब क्वेश्चन शुड क्लियर बिफोर व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर दैट यू हैव टू अडॉप्ट. देखिए स्लांट एज की बात चल रही है ना. स्लांट एज, जब भी स्लांट एज लिखा होगा भाई स्लांट एज इज वर्टिकल, और इन केस ऑफ पिरामिड, ओके, तो पिरामिड में चाहे ट्रायंगल पिरामिड हो या फिर स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, तो आपको इसी तरह बनाना होगा. यही अगर एज की बात होती भाई, एज समथिंग एज, तो फिर हम उस तरह बनाते हैं, एज रिप्रेजेंट करते. मैंने जब प्लेन के क्वेश्चन कराए थे, जब मैंने कराए थे तो बताया था कि भाई कॉर्नर लिखा होता है तो किस तरह प्लॉट करते हैं हम, और जब एज लिखा होता है क्वेश्चन में कि एज इन एचपी, तो हम किस तरह फिगर बनाते हैं पेंटागन या हेक्सागन का, बताया हुआ था पहले. तो जब नॉर्मल स्क्वायर भी बनाएंगे तब भी तो दो फेस तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, मतलब दो एज तो दिखेगा ही. ओके, लेकिन इसकी जो दो कॉर्नर हैं वो तो आपके मैसअप हो जाएंगे ना. कैसे? आपको देखो 4 कॉर्नर हैं, ठीक है. Yes, तो sir. जब आप सिंपल स्क्वायर बनाओगे तो ए और डी आपके मैच हो जाएंगे. हाँ, वही कह रहा हूँ सर, मैच हो जाएंगे. दो एज तो दिखे, मतलब वो दो दिखेंगे ना सर. दो ट्रायंगल का दो साइड नहीं दिखेंगे. देखो यहाँ पे ए डी हो जाएगा मैच, ठीक है. यहाँ पे सी बी हो जाएगा, ठीक है. देन अगर बात आएगी कि वन स्लांट एज इज वर्टिकल, तो जब भी आप वर्टिकल करोगे तो ऑब्वियसली वो पहले से ही वर्टिकल दिख रहा है, और वन स्लांट एज नहीं है, वो दो स्लांट एज वर्टिकल दिख रहे हैं. अगर आप ट्रायंगुलर फेस जब बनाएंगे तो जब पहले से देखिए इसी तरह रहेंगे कि फिर एक ट्रायंगल दिखेगा ना. यस सर, वही कह रहा हूँ, ट्रायंगल दिखेगा. और फिर उसको तो हाँ, तो वन स्लांट एज की जगह फिर कितनी स्लांट एज आपके वो हो जाएंगे परपेंडिकुलर, वर्टिकल.
देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली आपको जो ध्यान देना होता है ये है कि यहाँ स्लांट एज लिखा है। जब भी स्लांट एज की बात आती है तो हम कॉर्नर लेके चलते हैं। आपको इस तरह एक डायगोनल टाइप से इस तरह बनाना होगा आपको स्क्वायर पिरामिड। ओके, मेकिंग एंगल 45 डिग्री, मतलब कि इक्वली इंक्लाइंड विद द वीपी। द स्क्वायर पिरामिड, द एजेस ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइंड विद द वर्टिकल प्लेन। इस तरह आपको बनाना होगा। कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी एजेस की स्लांट एज की बात आती है, स्लांट एज इज वर्टिकल, तो आपको इस तरह बनाना होगा, तभी आप इसे बना पाएंगे प्रॉपरली। अगर आप सोचते हैं कि नहीं वो तो हम इस तरह बना देंगे, देन हाउ विल यू डू इंक्लाइन फ्रॉम वन कॉर्नर? नो, यू विल नॉट गेट ए सिंगल कॉर्नर, यू विल गेट, ये आपके वो हो जाएंगे फिर ओवरलेप, ए डैश बी डैश, ए डैश डी डैश और सी और बी और ए और बी। सर मतलब मिड सेम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ईडी के? देखिए मिड सेम में जैसे कि ये बताया हुआ, देख मैंने क्या है कि अपलोड कर दिए हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो लेक्चर, लेकिन बच्चे नहीं Yes, ध्यान sir. दिए हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कैसे तैयार करेंगे? देखिए वो एक अलग इशू है कि भाई क्या होगा अभी एग्जाम का, कब एग्जाम होंगे, लेकिन मिड सेम तो आपके है ना अभी। सर तो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, मतलब ऐसे बनाने नहीं वाले? नहीं, बनाने वाले रहेंगे। मल्टीपल चॉइस का तो सवाल ही नहीं होता ना, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस थोड़ी आना है। यस सर। सर फिर शीट का आपको, क्या? अभी तो मार्केट भी बंद है ना। अरे सुनिए तो, जैसे आपके पास A4 साइज का पेपर तो होगा, यस सर। है ना, तो A4 साइज के आप पेपर पे बनाएंगे क्वेश्चंस। ओके, और Yes, उसका sir. पिक्चर क्लिक करके आप मूडल पे आप सबमिट कर देंगे। असाइनमेंट देंगे हम, इसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे। सर लेकिन ओके, लाइनिंग वाले Sir. पेजेस हैं बस। हाँ तो इस वो लाइन भी है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आएगा एक आपका, प्रोजेक्शन सर ऑफ जो सॉलिड। पेजेस प्रॉब्लम ये है ना सर, घर पे वो लाइनिंग वाले हैं सर, भी नहीं एक है पेजेस नहीं। सर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे नहीं बच्चे है सर, मतलब कैसे घर आए बनाएंगे हुए से सर? तो कॉपी सीट वाले लेके तो पेज आए है नहीं वो। होंगे। नहीं देखिए जो स्केल भी नहीं देखिए है। तो जो प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ भी है, पता है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास भी स्केल नहीं है, मेरे पास भी बुक नहीं है, मैं ग्वालियर में नहीं हूँ भाई। तो ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये ऑलरेडी मेरे मेल पे पड़ी हुई थी, तो मैंने वहां से डाउनलोड की, फिर मैं ये सर लेक्चर वही ले कह रहा रहा हूँ ना हूँ। सर कि A4 साइज की आपने बात की तो बहुत सारे बच्चे तो घर गए हुए हैं, तो अब पॉसिबल ही नहीं है। वही तो सर, हम लोग के पास तो कॉम्पिटिटिव रोलर स्केल वगैरह भी जरिए नहीं सर है। तो नहीं है ये सर, आपने देखिए अपने पास एक फैसिलिटी है, ऑनलाइन क्लास विद द जूम सॉफ्टवेयर जो है, हम अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हो और मैं आप क्लास ले रहा हूँ। ओके, ये तो है ना, इट इज पॉसिबल ना। तो आप कुछ पेजेस, लाइन वाले पेजेस है, नो मैटर, आप लाइन वाले पेजेस पे आप सॉल्व कर लें, और जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, ओके, तो उनका जो एग्जाम होगा ना, एंड हेलो भाई ये माइक बंद करो पहले, है ना, तो एग्जाम के आफ्टर एग्जामिनेशन, ओके, तो उन बच्चों का फिर ले लेंगे मिड सेम। मतलब उस समय एक पॉलिसी रहती है कि भाई जब बच्चे नहीं दे पाते हैं तो एक वी हैव द ऑप्शन ऑन दैट टाइम। ओके, सर वो तो मिड सेम 3 होगा सर, वो तो फिर वो सर तो आप कह इससे रहे हो। बेटर रहेगा सर कि आप भी नहीं ऑब्जेक्टिव ही नहीं कर वो दे सर। नहीं 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 सर। ऑब्जेक्ट ये पेपर ही मत सर, नहीं लास्ट नहीं में नहीं ले लेना सर। एक्चुअली में सुनिए एक्चुअली में क्या है, ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं लिया जा सकता ना, क्योंकि मेरे पास भी ऑर्डर है कि भाई जो ग्राफिक्स के जो क्वेश्चंस हैं या आर्किटेक्चर में जो क्वेश्चन है ना, इनका असाइनमेंट लिया जाएगा, असाइनमेंट। ओके, तो असाइनमेंट सर दे देंगे कुछ दिनों में बना के, सुनिए, कोशिश हाँ करके। कुछ दिनों में नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, आप सबमिट कर दे, 1.5 घंटे का 1.5 आवर का टाइम देंगे तो आप उसे सबमिट कर देंगे, सर अभी वो है सब ना। नहीं है, वो स्केल वगैरह, वो रोलर स्केल वगैरह कुछ नहीं ला पाए, फंस गए यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं है, मैं खुद देख पा रहा हूँ 40 बच्चे 45 से ज्यादा कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं ना, 145 ही ऑनलाइन आ पा रहा है, तो इतना मेजर इशू नहीं है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ विद द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके, अगर ओके आपको सर। क्वेश्चन देन यू कैन ड्रॉ, इट इज योर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ओके अगर सर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हाँ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो मेन एग्जाम जब आ जाएंगे, मान लीजिए जब भी लॉकडाउन खुलेगा, फिर कंडीशन देखी जाएगी कि भाई केसेस कितने जो इन्फेक्टेड केसेस हैं, है ना,
उसके बाद फिर डिसाइड, देखिए अभी तो एडमिशन भी होने हैं फर्स्ट ईयर के, है ना, सब कुछ डिले हो गया है ना, आपके एग्जाम भी डिले हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम, पूरा सेशन ही डिले हो जाएगा। सर मिड सेम से लेकिन इफेक्ट पड़ेगा ना हमारे रिजल्ट पे। देखिए मिड सेम में हमारे पास एक ऑप्शन, हेलो, मिड Yes, सेम में sir. हमारे पास ऑप्शन है, मूडल के थ्रू यू कैन गिव द मिड सेम। सर मॉडल तो सर क्विज में क्रैश हो जाता है सर, तो पेपर में Quiz क्या में ही क्रैश हो होगा जाता है। उसके साथ। अरे अरे सुनिए, तो देखिए मूडल पे असाइनमेंट में जैसे ही आप असाइनमेंट ओपन करेंगे आपको 5 to 6 क्वेश्चन दिखेंगे, ओके, तो Yes, आप sir. उसका पिक्चर मोबाइल से आप क्लिक कर लें, ठीक है, और फिर वो जो क्वेश्चन है या फिर लैपटॉप पे डिस्प्ले हो रहा हो तो लैपटॉप से डिस्प्ले कर लें, डाउनलोड तो हो ही जाएगा वो असाइनमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे 5 या 6, उसमें से आपको 2-3 करने होंगे, एटलीस्ट 3 तो करने होंगे, 6 क्वेश्चन हम ऑप्शंस बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर देंगे, फिर आपको जितना आप कर सकते हैं अपने एंड से। सर ऐसा तो नहीं होगा कोई पानी दे दो। सर कोई क्वेश्चन कंपलसरी हो, मतलब नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, अरे असाइनमेंट रहेगा, सुनो भाई सुनो, ये असाइनमेंट रहेगा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन करने होंगे, है ना, क्या है कि हेलो, Yes, sir. तो सर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी आ रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफ सॉलिड भी आएगा, क्योंकि मैंने, आप देख नहीं रहे हो ना, मैंने YouTube पर सेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे सर हो ना। प्लेन सॉलिड सर रिएक्शन सेक्शन नहीं हो पा रहा सर। अभी तो क्या नहीं हो सॉलिड पा में रहा? ही फंसे हुए हैं सर। सर सर साथ सॉलिड ही नहीं, सोचने में समय तब लगता समझ है में सर। आता था, ऐसे तो फिर नहीं, खाली एक्चुअली सुनते रहते हैं, एक्चुअली कुछ समझ सुनिए में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही सर। अरे सुनिए सुनिए, अरे प्रैक्टिस, मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने बताया था कि आप एक टेट्राहेड्रॉन या पिरामिड बनाइए, ठीक है, पिरामिड आप बना सकते हैं पेपर का, ओके, हाँ सर। मैंने भी बनाए हुए थे मॉडल, आप देखोगे वीडियो पे जाओगे तो एक मैंने पिरामिड बनाया हुआ था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप पिरामिड बनाइए, उसे एचपी पर रखिए पहले, और फिर देखिए, फिर उसी का बेस को बीपी पर रखिए, एज पर द क्वेश्चन आप रख के देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ना। क्या है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बिफोर मॉडल समझे जाते हैं, फिर वो उनको ड्रॉ करना इजी होता है कि हाँ भाई हमने समझ लिया ऐसा दिखेगा, लेकिन ड्रॉ कैसे कर, ठीक है। सर मिड सेम में सर ये सेक्शन ऑफ सॉलिड मत रखिए, क्योंकि फिर ये सॉलिड ही खत्म नहीं होगा जब तक नहीं नहीं, एक्चुअली में हाँ आप वही समझिए, ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अरे मेरी बात समझिए, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे क्या पूछना है, ठीक है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 30 तारीख तक सर ने गाइडलाइन दी हुई है कि भाई अप टू 30 of April आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, तो जो भी है तो कंप्लीट करना है, कंसेप्ट देखिए, फिर क्लासेस कब होंगी नहीं पता, है ना, अब जो आपको सीधा एग्जाम देना होगा। सर, लेकिन हम लोग का और भी सब्जेक्ट का 25 या 26 से हम लोग का तो मिड सेम और भी सब्जेक्ट का शुरू है ना सर, तो उसके लिए हाँ, भी तो तो कोई नहीं, पढ़ाई करनी है ना, तो फिर ये नहीं सॉलिड ही खत्म सुनिए नहीं हो रहा है, सुनिए, सेक्शन ऑफ अरे सॉलिड नहीं नहीं कैसे? नहीं, सर तो एक एक दो बुक्स एक भी नहीं है एक सर, एक मिनट, देखिए हाँ, तो सॉलिड सर- में अब, अरे सुनिए, तो देखो अभी ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लगा होगा ना आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आना है ये तो इसलिए हार्ड है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देते हैं कि भाई एज ऑन एपेक्स इज ऑन एचपी, तो इन दिस केस हाउ विल यू ड्रॉ, तो बच्चे शुरू का फिगर ही गलत कर देते हैं, स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये टीचर्स के ऊपर, लेकिन इस बार जो क्लासेस डिस्टरबेंस जो हुआ है क्लासेस में, उसको देखते हुए क्वेश्चन पेपर भी इजी आएगा। सर जो हेलो, ऑप्शंस होंगे सर वो सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे ना, या फिर सर इजी आएगा ऐसा सर, तो नहीं एक है और सर कि कोई रिक्वेस्ट है कोई सर, क्वेश्चन कहाँ से रुक नहीं जाएगा? नहीं, एक्चुअली में क्या इजी, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इजी है, और अगर कंसेप्ट ही नहीं जानते पता हमें तो फिर सारे ही क्वेश्चन टफ हो जाते हैं ना। सर को कंपल्सरी मत करना, कोई भी क्वेश्चन में हाँ ऐसे मत लिखना कि इसको तो कंपल्सरी है, क्योंकि हाँ एक सर, तो ये समझ क्वेश्चन में कंपलसरी है। सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड ऑल, ओके 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 ओके, ये मत तो बिना करना। लास्ट कंपास के टाइम थ्रू जैसे तो होगा था। नहीं ना, नहीं हाँ बिना सर, कंपास के कंपास भी कैसे नहीं है होगा, सर। कंपास मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब आप फिलहाल प्रॉब्लम क्वेश्चन वही है को ना सर। सीखिए, एक मिनट, मिड सेम की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिड सेम की मैं और बात कर लूंगा अपने हेड साहब से, जो प्रॉब्लम्स आपने रखी है ना, ओके, हाँ सर। हेलो, सर थैंक यू मैं सर। अपने हाँ हेड सर से सर। बात कर लूंगा। अभी तो आप जो इसका चैट बॉक्स है उसमें आप प्रेजेंट अपनी मार्क कर दें, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप और देख लें, वो भी लिटिल बिट डिफरेंट, देखो इजी क्वेश्चन में अगर कराऊंगा ऑनलाइन तो कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि वो तो आप अपने खुद ही कर लेंगे, हेलो, है ना, अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन है तो आप खुद ही कर लेंगे ना,
तोबा थारा मूड खराब कर दिया। मैं अकेला कर हेलो लेता हूँ। हेलो, हाँ सर। है ना? तो चलिए ठीक है, टाइम अब भी हो गया, मुझे 40 मिनट से ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा है मुझे, इसमें भी फिर से मैसेज आया है। हेलो आर्यन, यस सर। हाँ हाँ है ना? तो अपना जो स्क्रीन शॉट के वो ले लो, आप मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले लो जितने ही बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन सीखें, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने टाइप्स के सॉलिड के क्वेश्चन हैं और सेक्शन ऑफ सॉलिड है, डेवलपमेंट के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये देखिए प्रेजेंटेशन है। हाँ हेलो, में डाउट था सर, हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना, रुको 1 मिनट करते हैं स्क्रीन शेयर। सर अगर जिनके पास कंपास नहीं होगा वो असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? हाँ तो मैं ये बात रखूंगा ना, मैं कल बात करता हूँ आपसे, कल अपनी क्लास रहेगी। तो कल कितने 12 बजे चाहते हैं आप कि 1 बजे चाहते हैं क्लास? 12 बजे। हेलो ठीक है, तो कल 12 बजे अपन सर 1 बजे, 1 बजे सर 1 बजे ठीक है, 1 बजे रखते हैं। ठीक है 12 से 1 सीधे सीधे हो जाएगी ना, 1 घंटा क्या बर्बाद कर रहे बीच में? अरे तो बीच में फिर खाना वाना खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो खाना एक सीधे बाद में खा लेना, क्लास के समय खा लेना। अरे यार देखिए मेरी बात सुनो, ठीक है? क्या है कि अपने पास फैसिलिटी है बेकार जा रहा है। अरे तो मेरा भी तो 1 बजे 1 से 2 में मेरा भी हो जाता है खराब, पता है? मैं भी चाहता हूँ दिन में थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सर क्लासेस पता है ऐसी हैं, 10 से 11, फिर 11 से 12, फिर बाद में 3 से 4। हाँ ठीक है, वो फैसिलिटी में रहेगा तो सर अच्छा रहेगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ आप मुझे टाइम बता दें एग्जैक्ट। क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे कनेक्ट हो पाए। यस सर, वही अगर वो कंटिन्यूटी में रहते तब आ जाते हैं, रात में तो चल जाते हैं। चलिए जैसा भी आप मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो अपनी जो क्लास रहेगी 1 से 2 ही रहेगी, ठीक है? आप शेड्यूल में चेंज चाहते हैं, शेड्यूल चेंज कर लेंगे। सारे लोग बोल रहे हैं तो सर सारे लोग बोल रहे हैं तो 12 से 1 ही कर लो सर। ठीक है 12 से 1 कर लेंगे। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में बताओ? सर ये ट्रायंगल बनाया ना, एडीओ इसको हमने परपेंडिकुलर टू बीपी दिया है। परपेंडिकुलर टू बीपी, देखिए जो एज आपकी वर्टिकल है, सुनो एबीओ को भी कर सकते हैं, एबीओ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, एबीओ कर सकते हो आप। देखिए एओडी भी कर सकते हो, एबीओ भी कर सकते हो, ओके? क्योंकि जो आपकी एज है कौन सी, एओ परपेंडिकुलर जो एज है वो ट्रायंगल आपकी बना रही है, एओडी के साथ भी बना रही है और एओबी के साथ भी बना रही है। हेलो यस सर, है ना? एओबी के साथ भी बना रही है ना, अब तो कोई भी आप ले सकते हो। हेलो यस सर। तो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है वो क्योंकि उसमें इजी दिया होता है। देखिए आप इधर देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन का बिफोर क्वेश्चन वी शुड हैव टू क्लियर दिस, ओके? द सीजी ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, h/2 होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की होती है ना, यस सर, यस सर। पिरामिड का होता है h/4 होता है। मतलब आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, तो सीजी ऑफ द पिरामिड इज h/4। पता है सर, पिछले वाले सवाल में थी, पता है। चलिए ठीक है, तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन तो आपको बुक में आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू हैव बुक, ओके? सो इट इज लिटिल बिट डिफरेंट बुक हियर। नहीं है हमारे पास। बुक नहीं है, कोई बात नहीं है। एक चलिए ठीक है जी, मैं जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे अपलोड मैं मूडल पे कर ही रहा हूँ, आपको केवल आप देखें एक बार, ठीक है? तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना? बुक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे पास भी बुक नहीं है, ओके? तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये पेंटागन पिरामिड का है, 30 mm बेस साइड एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस, ओके? ये पिरामिड है वो आपका स्क्वायर पिरामिड था इससे पहले। ये क्वेश्चन को आपको समझना है कि कैसे करना होता है एग्जैक्टली। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर,
जो पिरामिड है उसको किसी कॉर्नर से हमने लटकाया हुआ है, हैंगिंग कंडीशन है उसकी, लटकाया हुआ है। इन दिस केस ओके, इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू क्या होगा वो आपको बनाना है, और साइड व्यू। ओके, क्या समझ पा रहे हैं ना आप कि ये जो केस है, अगर फ्रीली सस्पेंडेड लिखा हुआ है तो आपको सीजी पता होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है पेंटागन पिरामिड या सिलेंडर, उसका सीजी क्या है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये फ्रीली सस्पेंडेड जो होते हैं आपके, उसमें ये माना जाता है कि भाई द बेस इज रेस्टिंग, द पिरामिड बेस ऑफ द पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बेस आएगा, ये हमेशा ही रहता है। जो फ्रीली सस्पेंडेड केस होते हैं मानते हैं कि आपका जो सॉलिड का जो बेस है इट इज स्टैंडिंग ऑन एचपी, पिरामिड स्टैंडिंग ऑन एचपी। ओके, लाइक दिस XY लाइन आप प्लॉट करेंगे, इजी है क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं ना, तो आप देख ही रहे हो। XY लाइन हमने फर्स्ट प्लॉट किया, दिस इज द पिरामिड। ओके, draw, mark all these points A, B, C, D, E. Freely suspended case में आपको it is resting on HP. It is the concept. If the question comes from freely suspended, okay. क्योंकि इसके बाद आप ये कॉर्नर को पकड़ेंगे और freely that which freely suspended. Axis is given 60 mm. Mark all these points O dash, A dash, B dash, C dash, D dash. Okay. सर हाँ सर जैसे इसमें लिखा है कि सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर, तो कॉर्नर हाँ, के लिए one. से हम लोग ये जो एज है उसको परपेंडिकुलर क्यों कर रहे हैं उसके XY लाइन के? नहीं, एक्चुअली में आप उल्टा बना दो कैसे, लेकिन एक्चुअली में आप तो जानते ही हो ना कि जब भी हम इस तरह फिगर बनाते हैं कि हमारे लिए इजी होता है उसका प्रोजेक्शन। अगर आप और टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे तो और आपके लिए कॉम्प्लेक्सन क्रिएट हो जाएंगे ना। नहीं समझे सर जैसे इसका ये फ्रीली सस्पेंडेड है तो इसका एपेक्स तो नीचे की तरफ होना चाहिए ना? नहीं, फ्रीली सस्पेंडेड अभी तो मैंने ये कहा इनिशियल केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये पिरामिड है आपका एचपी पर रखा हुआ है, इसका जो बेस है वो एचपी पर है इनिशियल कंडीशन में। इसके बाद हम किसी एक कॉर्नर को उठाएंगे। ओके, इसके कितने कॉर्नर है? 5 कॉर्नर है ना? यस सर। हेलो, हाँ, तो किसी एक कॉर्नर से हमने उठा के फ्रीली सस्पेंड किया। ठीक है, तो जो कॉर्नर फिर वो जो है वो कहाँ से पास होगा, वो सीजी से पास होता है। वन परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्नर विल पास फ्रॉम द सीजी ऑफ द पेंटागनल पिरामिड। देखिए, जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उसको एक कोई भी पिरामिड लिया उसको एक कॉर्नर से हमने फ्रीली सस्पेंड किया, तो उस कॉर्नर से जो लाइन परपेंडिकुलर टू XY जो पास होगी वो सीजी से पास होगी। आपका जो पिरामिड है उसके सीजी से पास होगी। ये तो क्लियर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली सस्पेंडेड वन परपेंडिकुलर थ्रू द कॉर्नर फ्रॉम दैट it is suspended, that corner or the vertical line will pass from its CG of the pyramid. देख लीजिए आप, जैसे this is the CG HY4 from the XY, from its base the CG will lie on axis HY4. This is G dash, center of gravity. Okay, HY4. Join this HY4 through D, क्योंकि डी से हम सस्पेंड करेंगे ना। दिस इज द कॉर्नर। ओके, ओके, देखिए जी डैश और डी डैश को हमने इसलिए मिलाया क्योंकि जी, देखिए जब भी आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वन परपेंडिकुलर फ्रॉम द XY पासिंग थ्रू डी डैश will also pass from center of gravity perpendicular to XY। वन परपेंडिकुलर अभी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये डी डैश है और नीचे हमारा जी डैश है। दिस वर्टिकल फ्रॉम द XY, दिस इज जी डैश, डी डैश। ओके, हेलो, दिस इज द केस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड। अब जिस कॉर्नर से आपका ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है